کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ولی بھی پیدا ہوتے ہیں جن کے سامنے زمین و آسمان، آگ اور پانی اور وقت کے اصول بھی عاجز ہو جاتے ہیں؟ ایسے ولی جن کی نگاہ ایک لمحے میں تقدیر بدل دیتی ہے اور جن کے قدموں کے نشان فقر و عشق کے اسرار کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج ہم اسی قلندر کے جلوے دیکھیں گے جس کی زندگی خود ایک معجزہ تھی اور جن کی کرامات آج بھی ہر دل میں روشنی کی طرح زندہ ہیں۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں داستان اردو، جہاں ہم معرفت کے ان رازوں کی کھوج کرتے ہیں جو دنیا کی عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں ہر قصہ، ہر واقعہ اور ہر کرامت حقیقت پر مبنی ہے اور اسے پیش کیا جاتا ہے ایسے انداز میں کہ ناظر کے دل پر اس کا اثر ہمیشہ قائم رہے۔ آج کا موضوع ہے بابا جی سخی سید مردان علی شاہ قلندر مست ونگاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ، پیدائشی ولی، فقیر اور عارف، جن کی ذات میں کل فقر کا فیض موجود تھا۔ ان کے فرامین آج بھی زندہ ہیں، ان کی کرامات آج بھی دلوں کو حیرت میں ڈالتی ہیں اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ معرفت کا ایک باب ہے۔ اگر آپ بھی ان قلندرانہ جلووں اور حقیقی فیض کے گہرے اسرار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی داستان بھی آپ تک پہنچے۔ چلیں بلا تاخیر قدم بڑھائیں اس قلندرانہ سفر میں، جہاں فقر، عشق اور کرامات کی روشنی ہر لمحہ دلوں کو روشن کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، وڑائچاں والا ضلع گجرات یہ وہ گاؤں ہے جسے لوگ ولیوں کا گاؤں بھی کہتے ہیں۔ یہاں کی زمین اور آسمان کی ہوا میں نور کا اثر محسوس ہوتا ہے اور ہر پتھر، ہر درخت گویا اولیاء کی داستان سناتا ہے۔ اسی گاؤں میں پیدا ہوئے بابا جی سخی سید مردان علی شاہ قلندر مست ونگاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ، جن کا خاندان بخاری نقوی سادات کی روشنی سے منور ہے۔ دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے ساتھ ہی ان کے اندر وہ روشنی ظاہر ہوئی جس کا اثر ہر دیکھنے والے کی روح پر محسوس ہوتا۔ بچپن میں ہی ان کے کلام میں ایسا نور تھا کہ سننے والا مبہوت رہ جاتا اور دلوں میں فقر و معرفت کی ہلکی ہلکی جھلکیاں نمودار ہونے لگتیں۔ دنیا کے دھوکے، محبتیں اور ہرس ان کے دل کو چھو بھی نہ سکیں، کیونکہ وہ پیدا ہی ایک ولی کے طور پر ہوئے تھے جسے فقر کی منزلیں طے کرنی تھیں۔ بابا جی سخی سید مردان علی شاہ قلندر مست رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ہر لمحہ جہد و ریاضت میں گزرا۔ 109 سال کی عمر میں بھی ان کا ہر لمحہ ذکر، عبادت اور فقر میں گزرتا رہا۔ کل فقر نے انہیں سلام پیش کیا اور آج بھی ان کے فرامین، ان کی بصیرت اور ان کے اعمال ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ ہیں۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جو کبھی دنیا کے بندھن میں بندھے نہیں تھے۔ نہ دولت نے انہیں بہکایا، نہ شہرت نے مائل کیا۔ ان کے لیے دنیا محض ایک آزمائش تھی اور ہر دن، ہر لمحہ فقر اور معرفت کی منزلوں کا سفر تھا۔ گاؤں وڑائچاں والا کی فضاؤں میں ان کی روشنی نے ہر عاشق دل کو اپنی طرف کھینچا اور یہ وہ آغاز تھا جس نے ہمیں آج اس قلندرانہ سفر کی کہانی سنانے پر مجبور کیا۔ زندگی کا ہر ولی ایک پیغام لیے ہوئے ہوتا ہے اور بابا جی سخی سید مردان علی شاہ قلندر مست رحمت اللہ علیہ وہ قلندر تھے جن کے ہاتھ میں فقر کی وہ عظیم امانت تھی جو مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ سے صدیوں کے سفر کے بعد پہنچی۔ یہ امانت جناب مولا علی علیہ السلام سے چلی، حضرت بو علی قلندر مست رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی، پھر بابا جی سخی سید سجاد علی شاہ المعروف بابا گلاب شاہ موتیاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ تک پہنچی۔ جب بابا جی سخی سید مردان علی شاہ قلندر مست رحمت اللہ علیہ اس امانت کو حاصل کرنے کے لیے بابا جی گلاب شاہ موتیاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ پہنچے تو موتیاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کی امانت ہم نے بابا گراں دتا رحمت اللہ علیہ کو دے دی ہے، جو آپ انہی سے حاصل کریں گے۔ جب بابا جی سخی سید مردان علی شاہ قلندر مست رحمت اللہ علیہ بارگاہ بابا گراں دتا سرکار رحمت اللہ علیہ پہنچے تو ایک قلندرانہ جلوہ ہوا، ایسی معرفت، ایسی شان کہ جو کوئی بھی وہاں موجود تھا وہ حیرت اور سرور سے عاجز رہ گیا۔ بابا جی کو وہ امانت دی گئی جو مولا علی علیہ السلام کی طرف سے خود بھیجی گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کا علم اور عقل عاجز رہ جاتے ہیں اور دل ہر سانس میں فقر و عشق کا احساس محسوس کرتا ہے۔ اس امانت کی طاقت اور فیض نے بابا جی سخی سید مردان علی شاہ قلندر مست رحمت
रहमत उल्लाह अलैह को न सिर्फ वलियों के दरमियान मुमताज किया बल्कि उनकी निगाह एक लम्हे में तकदीर बदल देने की शान रखती थी। ये अमानत सिर्फ एक चीज नहीं थी बल्कि फकर की मंजिल, मार्फत का निशान और इश्क की रहनुमाई थी। जो भी आशिक और मुरीद उनके गिर्द आता वो महसूस करता कि ये नूर, ये फैज दुनिया के किसी और मुकाम पर नहीं मिलता। बाबा जी की ये शान और मार्फत आज भी उनके फरामीन और करामात में मौजूद है और वो हर दिल में रोशनी का सरचश्मा बने हुए हैं। मोहतरम दोस्तों, जहाँ फकर अपने कमाल को पहुँच जाए वहाँ अक्ल खामोश हो जाती है। जहाँ मार्फत अपने अरूज पर हो वहाँ अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। वहाँ सिर्फ हाल बोलता है और नजारा सजदा बन जाता है। यही वो मुकाम था बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त वंगा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का। उनकी हर सांस में इश्क की खुशबू थी, हर निगाह में फकर की रोशनी और हर अमल में रब की रजा का जलवा। बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह इंसान की सवारी करते थे। ये करामत नहीं, एक राज था। बाबा जी फरमाया करते थे, फकीर सवारी नहीं मांगता, बंदगी मांगता है। जो बंदगी में फना हो जाए वो हमारा घोड़ा बन जाता है। जब बाबा जी फरमाते आओ हमारा घोड़ा बनो तो सामने वाला झिझकता नहीं था, झुक जाता था। और जब वो शख्स बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह को अपने कंधों पर उठाता तो लोग हैरान रह जाते, जैसे वजन नाम की कोई चीज बाकी ही ना रही हो। ये कोई करिश्मा नहीं था, ये वो लम्हा था जब इश्क बंदे के वजूद को मिटा देता है। जो कंधे उठाते थे वो कहते यूं लगता है जैसे कुछ उठाया ही नहीं, जैसे हवा के झोंके का लम्स हो। यही फकर की पहचान है, जहाँ मादा खत्म हो जाता है, जहाँ रूह गालिब आ जाती है, जहाँ फकीर अना से पाक होकर अम्र बन जाता है। एक रोज बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक खास मलंग बाबा शेर शाह के कंधों पर सवार थे। रास्ते में एक छोटी नहर आई और मलंग बाबा शेर शाह आहिस्ता आहिस्ता नहर में उतरने लगे कि इसके अंदर से इसे पार कर लिया जाए। लेकिन बाबा जी ने इरशाद फरमाया, हमारे घोड़े तो छलांग लगाते हैं, चल शेर शाह। ये जुमला था या इज़्ने इलाही। मलंग ने अपनी आंखें बंद की, घोड़ों की तरह एड़ लगाकर छलांग लगा दी और जब आंख खुली तो नहर पार हो चुकी थी। जिसने ये मंजर देखा वो समझ ना पाया, ये अक्ल का नहीं इश्क का काम था। कहा जाता है कि आग सब को जलाती है, मगर जो इश्के इलाही में जल चुका हो उसे दुनिया की आग नहीं छू सकती। एक दिन गांव वड़ाइचा वाला के साथ वाले गांव खोजा के तंदूर पर बाबा जी तशरीफ ले गए। तंदूर भड़क रहा था, शोले बुलंद थे। लोगों ने अर्ज की, बाबा जी आग है। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, आग हमें नहीं जलाती, आग हमारा अदब करती है। ये कहकर फकीर उस भड़कती आग में उतर गए। सबके चेहरे खौफ में सफेद हो गए। लेकिन चंद लम्हों बाद जब बाबा जी बाहर तशरीफ लाए तो उनके चेहरे पर नूर ही नूर था और होंठों पर तबस्सुम। ये जलवा देखकर लोग रो पड़े, क्योंकि वहां इल्म खत्म हो गया था और यकीन शुरू हो गया था। एक दिन बाबा जी डिंगा शहर के रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। पुराने जमाने की रेलें कोयले के इंजन से चलती थीं, जहां अंदर दहकती आग थी। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह सब के देखते ही देखते इंजन के दहकते हुए हिस्से में दाखिल हो गए। लोग दौड़ पड़े, चीखें सुनाई दी, मगर कुछ वक्त बाद बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह बाहर आए। कपड़ों पर आग का असर नहीं, चेहरे पर सुकूने कामिल, और बोले, जिसे इश्क जला दे उसे दुनिया नहीं जला सकती। ये वो वक्त था जब अक्ल सजदे में गिर गई और इश्क दायमी नजर आया। बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह के हाथ अंगूठियों से भरे हुए थे, हर उंगली पर हल्का, हर जोड़ पर छल्ला। ये इश्क के निशानात थे, मगर वक्त के साथ कुछ अंगूठियां गोश्त में पैवस्त हो गईं। एक दिन बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, घी गरम करो। जब घी उबलने के करीब पहुंचा तो एक मुरीद रो पड़ा, बाबा जी ये हाथ जल जाएंगे। बाबा जी मुस्कुराए, फकीर का हाथ जल नहीं सकता, क्योंकि ये अमले हक का अल्लाह है। फिर वो घी उनके हाथ पर डाला गया। एक छपाक की आवाज आई और सारी अंगूठियां, छल्ले, जंजीरें खुद ब खुद उतर गईं। लोग बेहोश होने लगे, कुछ चीखने लगे, मगर बाबा जी खामोश रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में उन्होंने अपने हाथ को कपड़े की थैलियों में छुपा लिया और आखिरी वक्त तक अपने उस हाथ को कपड़ों में छुपाए रखा। फरमाया करते कि ये हाथ अल्लाह को दे दिया है।
कभी कभार बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह लोहार को हुक्म देते, ये लोहे का फाला दहका दो और इतना गर्म कर दो कि ये सुर्ख हो जाए। जब वो लोहा भड़क उठता तो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अब इसे हमारे जानों पर रख दो। लोग कांप जाते, मगर हुक्म फकीर के आगे कोई नहीं बोल सकता। लोहा जानों पर रखा जाता और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की मुस्कुराहट बदलती नहीं थी। ये वो लम्हा था जब जिस्म फना हो चुका था और रूह कामिल बेदार। ये सब जलवे आज भी जिंदा हैं। वो बुजुर्ग आज भी गवाह हैं जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखे। ये हकायक हैं, ये फकर की सच्चाइयां हैं जो इंसान को बताती हैं कि अल्लाह के आशिक मिट्टी के नहीं नूर के बनते हैं। बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह की हर करामत में एक सबक है कि इश्क दिखावे का नहीं फना का रास्ता है, और जो फना में जीता है वही हकीकत में जिंदा है। दास्तान उर्दू के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी जाहिरी आंखों से देखें तो हैरान कर देती है और बातनी नजर से देखें तो मार्फत का समुंदर बन जाती है। उन्होंने दुनिया के तमाम रिश्ते, लालच और कयूद एक ही नारे में फना कर दिए। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की। जब लोगों ने बारहा अर्ज की तो मुस्कुरा कर फरमाया, हमारी सब बेटियां हैं, हमारी शादी जायज नहीं। हम इस निकाह के नहीं उस इश्क के बंदे हैं जिसमें जात मिट जाती है, सिर्फ महबूब बाकी रहता है। ये जुमला उनके मुकामे नफी की अलामत है। वो फकीर जिनके दिल में दुनिया के लिए कोई गोशा नहीं था, सिर्फ फना और बका के बीच एक बारीक सी लकीर पर चलते थे। उनकी सारी जिंदगी ला की तफसीर थी। ला इलाहा कहकर हर शय को मिटाया और इल्लल्लाह में खुद को भुला दिया। एक वक्त आया जब बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह सदा सुहागन के रूप में रहने लगे। नथली, घूंघट, चूड़ियां, सब कुछ औरतों जैसा। लोग हैरान होते मगर मार्फत वालों के दिल कांप जाते, क्योंकि ये लिबास जाहिर में औरतों का था मगर बातिन में इश्क का। वो फरमाते, हम उसकी दुल्हन हैं जिसने हमें अपना दीदार बख्शा। वो इश्क के मैखाने में वो जाम पी चुके थे जिसके बाद ना दुनिया की खबर रहती है ना खुद की। हमेशा मस्ती में रहना, इश्क के जलवों में गुम हो जाना, फकीरों और मलंगों के साथ मार्फत बांटना, यही उनकी जिंदगी थी। उनके गिर्द हमेशा आशिक मलंग रहते, कोई ढोल बजाता, कोई झूमता, और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ये मस्ती, ये धमाल सब इबादत हैं अगर नीयत पाक हो। जो रो कर नहीं मुस्कुरा कर मिट जाए वही सच्चा फकीर है। वो हर लम्हा नफी की मंजिल पर खड़े रहते, कभी भूख में, कभी खामोशी में, कभी हजूम में, मगर हमेशा बेनियाज। उनकी फकीरी में दिखावा नहीं, बस सुकून और आजादी थी। ऐसी आजादी जो सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्होंने मैं को कुर्बान कर दिया हो। दुनिया वालों के लिए वो मस्त थे मगर अहले दिल के लिए वो आईना थे जिसमें अल्लाह की तजल्ली नजर आती थी। यही है बाबा जी मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह की कलंदराना तर्ज़े हयात, जहां इश्क इबादत है, नफी मार्फत है और बेनियाजी फकर की मेराज। प्यारे दोस्तों, साल था 1972। वक्त थम सा गया था, हवाएं साकत, फजा खामोश और वड़ाइचा वाला की सरजमीन पर अजीब नूर छा गया था। ये वो दिन था जब बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह ने जाहिरी पर्दा फरमाया, मगर जैसा कि वो खुद फरमाया करते थे, फकीर का कब्रों में क्या काम। फकीर तो जब दुनिया से पर्दा करता है तब ही तो वो जिंदा होता है, और यही राज दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। सन 1986 में 14 साल बाद बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुखलिस आशिक को ख्वाब में फरमाया, मुझे कब्र से निकालो, मेरी जगह वो नहीं जहां मैं आराम कर रहा हूं, बल्कि वहां जहां तुम्हें हुक्म दिया जाए। ये हुक्म ख्वाब नहीं तजल्ली थी। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के वही आशिक जो बाबा जी के इश्क में फना हो चुके थे, उन्होंने दरे अदब से ये राज पूरा किया। कब्र मुबारक खोली गई और दुनिया ने वो मंजर देखा जो सदियों याद रखा जाएगा। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा रहे थे, ऐसे आराम से जैसे कोई मस्त कलंदर नींद में भी जिक्रे मौला में महव हो, ना जिस्म पे तगय्युर ना वक्त का असर, जैसे जिंदगी कब्र के अंदर भी जारी थी। लोग दूर दूर से आने लगे। किसी ने कहा ये करामत नहीं, ये बका है।
किसी ने कहा ये इश्क की दलील है, और जो देखता खामोश हो जाता। 3 दिन तक बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह कब्र से बाहर रहे। खल्के खुदा ज़ियारत को आती रही। फजा में दरूद की खुशबू और सहन में कलंदराना वजद की कैफियत। 3 दिन बाद जनाजा दोबारा हुआ और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह को उस जगह दफन किया गया जहां उन्होंने ख्वाब में हुक्म फरमाया था। पहली कब्र खाली छोड़ दी गई। वो कब्र अब एक निशाने राज बन गई, खामोश मगर बोलती हुई कि यहाँ कभी एक ऐसा फकीर रहा जिसने मौत को भी मात दे दी। कुछ बरस बाद बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के पहले खलीफा, उनके भतीजे, मुरीद और राजदार बाबा जी सखी सैयद सैयद अब्बास बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वसाल हुआ। उन्हें बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की पहली कब्र में उतारा गया। यूं एक कब्र 2 हयातों का मरकज बन गई, एक जाहिरी एक बातनी। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के वसाल के बाद भी उनका फैज, उनकी मस्ती, उनकी जलती हुई कलंदरियत आज तक जारी है। उनके मजार पे रोज मेला लगता है, मोहब्बत का, मच का, दरूद का। कभी ढोल बजता है, कभी धमाल उठती है और फजा में ये सदा गूंजती है, वंगा वाला सखी मर्दान, कलंदरी रंग रंगदा। वक्त बदल गया मगर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का रंग नहीं बदला। वो अब भी वही हैं, हाजिर नाजिर, कब्र में नहीं दिलों में जिंदा। और यही है फकीर की पहचान कि वो मर कर भी नहीं मरता, बल्कि फना होकर हमेशा के लिए बाकी हो जाता है। आज भी वडाइचा वाला की सरजमीन पर वही नूर कायम है, वही मस्ती, वही फैज, वही जलती हुई कलंदरियत जो बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजूद से रोशन की। ये दरबार सिर्फ एक मुकाम नहीं, ये इश्क का आस्ताना है जहां हर आने वाला, खाह कोई बादशाह हो या फकीरी चादर ओढ़े गदा, दरवाजे पर आकर एक ही निदा सुनता है, यहाँ सब के लिए दरवाजे खुले हैं। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का सरकारी लंगर आज भी जारी है। वही चूल्हा, वही खुशबू, वही बरकत, जहाँ कोई खाली नहीं लौटता। खाने वालों में कोई तफरीक नहीं, सब बराबर हैं, क्योंकि यहाँ जात नहीं सिर्फ निस्बत चलती है। गद्दी नशीन पीर सैयद बूटे शाह बुखारी सरकार दरबारे आलिया के इंतजामात ऐसे नज़्मो ज़ब्त से संभालते हैं कि गोया रूहानी दुनिया का निज़ाम भी इसी तरतीब पर कायम हो। अदब, सफाई, जिक्र, खिदमत, हर गोशे में सुकून का अक्स झलकता है।